Good afternoon, dear students. Today, postnatal assessment and management. This is the next unit. हम start करने वाले हैं. Postnatal, as the name itself suggesting, after the delivery. It is a period that we understand the antenatal, intranatal and postnatal. मैंने हम पहले से आप लोग को ये चीज़ explain करके रखी हूँ. So postnatal is a period comes after the delivery of the child, okay, delivery of the baby. This is the period after the delivery, okay. So what the postnatal assessment and management is there. Postnatal condition ऐसा नहीं है कि बेबी आ गया तो वाओ वेरी एवरीथिंग विल बी फाइन, ऐसा नहीं है. Postnatal period is a very crucial period in which there is a need to take care of mother स्टिल आई एम टेलिंग यू, ठीक है. ऐसा नहीं कि एंटीनेटल में ही केवल ध्यान रखना है या फिर इंट्रानेटल में ही ध्यान रखना है. पोस्ट नेटल पीरियड इज इक्वल इम्पॉर्टेंट एज वी हैव टू टेक केयर ऑफ ए वुमेन टिल द 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी. जैसे ही डिलीवरी होता है 1.5 से 2 महीने तक फोकस्ड केयर मिलना चाहिए वुमेन को, ओके. उस टाइम पे भी वुमेन का बॉडी इज़ लाइक वेरी डेलिकेट कि उस टाइम पे हमको मदर का कंप्लीट टेक केयर करना है, ठीक है. इसलिए वी आर फोकसिंग दिस टॉपिक टू असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पोस्टनेटल period, okay. So we'll take care, we'll assess what the changes will comes during the postnatal period and how we will manage this postnatal period, okay. So let's start with the introduction. Puerperium is the period following the childbirth. See, let me find out this. Puerperium is the period following the childbirth, during which the body tissue, keep in mind what I'm telling you, body tissue, especially the pelvic organ, revert back. So many times I have told you about this involution and puerperium. Puerperium and involution both are similar things in which the cells and tissues are revert back, but the minor differences between this puerperium and the involution is, in this puerperium the pelvic organ and the cells and tissues of pelvic organ are getting revert back as the period of नॉन प्रेग्नेंट स्टेट. मतलब जितने भी पेल्विक ऑर्गन हैं, टिश्यूज़ है, सब रिवर्ट बैक हो रहे हैं. जैसे एक वुमन पहले प्री प्रेग्नेंट स्टेट में थी वैसे ही उनके सारे पेल्विक ऑर्गन्स और टिश्यूज़ रिवर्ट बैक हो रहे हैं, मतलब रीजनरेट हो के वापस पहले जैसे हो रहे हैं. दिस पीरियड वी कॉल दी पुर्पेरियम. दिस इज़ अ वेरी वेरी ईजी एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग लाइन्स. आपको कोई भी टिपिकल नहीं बता रही हूँ मैं, दिस इज़ वेरी ईजी लाइन्स. Puerperium is the period, again repeating, puerperium is the period फॉलोइंग दी चाइल्ड बर्थ के बाद ही ये पीरियड स्टार्ट होता है और 6 वीक्स तक ये पीरियड होता है. और कीप इन माइंड आफ्टर द डिलीवरी ओनली दिस पीरियड विल स्टार्ट. पुर्पेरियम इज द पीरियड फॉलोइंग द चाइल्ड बर्थ which the body tissues, especially the pelvic organ. Don't forget, I'm not using the word genital organ, okay. I'm using this word pelvic organ, so keep in mind the pelvic organ I'm telling you. Revert back approximately to the pre-period state, means प्री प्रेगनेंसी से पहले जो वाला पीरियड था उसमें उसके जैसे एनाटॉमिकली, बोथ एनाटॉमिकली एंड फिजिकली, एनाटॉमिकली भी एंड द फंक्शंस आल्सो विल रिवर्ट बैक एज प्री प्रेग्नेंट स्टेट, ओके. दैट्स ऑल अबाउट द पुर्पेरियम. लेट्स सी द मीनिंग. द वर्ड पुर्पेरियम कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड. See, the words puerperium comes from the Latin word that we call the purpura, okay. It means a woman in childbirth. A woman, अगर कोई woman childbirth में होती है तो that Latin word use the purpura, okay. Where the pure means, see this purpura is divided into, let me change the pencil, yeah. This purpura is divided into pure and this PERA, okay. Then let's see the meaning of pure. See, PUER, it means that child, okay. And this parer, PARERE, it means that give birth. What the meaning of this? Child birth, okay. Give the child birth. This is the meaning of puerperium. Let's see the definition.
प्यूपेरियम मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन में बताया दैट इज़ द वेरी अंडरस्टैंडिंग इन वेरी इजी लैंग्वेज फॉर द डेफिनेशन. आप दत्ता के बुक में भी देखोगे तो आपको वही डेफिनेशन मिलेगा और ये डेफिनेशन भी इजी है. यू कैन सी दिस ऑल्सो. प्यूपेरियम इज डिफाइंड एज द टाइम फ्रॉम द डिलीवरी. वो समय है जो डिलीवरी के से शुरू होता है. ऑफ द प्लेसेंटा, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के डिलीवरी से शुरू होता है थ्रू द फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर द डिलीवरी. फर्स्ट फ्यू वीक्स मीन्स 6 वीक्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के डिलीवरी होने के बाद से लेकर 6 वीक्स तक, मतलब डिलीवरी के बाद 6 वीक्स बोल रही हूँ, मतलब 6 वीक्स 6 वीक्स मीन्स इट्स अप्रॉक्स 1.5 महीना. ओके, इट इज़ द पीरियड ऑफ प्यूपेरियम. फाइन. Next we'll see the duration. अब duration, how, what duration we are calling. See, this period is divided into 3 sections. See, first is immediate, early and remote. This entire 6 weeks of puerperium is divided into these 3. First is immediate, next is early and remote. Now see how what time is for immediate. Within 24 hours is considered as immediate टाइम ऑफ प्यूपेरियम. ओके, विद इन 24 आवर्स मतलब 24 घंटे. प्लेसेंटा के डिलीवरी होने के बाद का 24 घंटा इज इमीडिएट. ओके, नेक्स्ट इज अर्ली, दैट इज अप टू 7 डेज. जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवर हुआ है, मान लो प्लेसेंटा 20 तारीख को डिलीवर हुआ है तो अर्ली कब तक कहलाएगा? 27 तारीख तक. दैट वी कॉल दी अर्ली स्टेज. नेक्स्ट इज रिमोट. इट इज called till the 6 weeks, means complete period of puerperium, complete होने तक, that we call the remote. Now let's revise immediate, early and remote. Immediate is within 24 hours, early is up to 7 days and remote is up to 6 weeks. Okay, that's all about the this period of puerperium. It is divided into 3 sections or 3 periods. Okay, now let me change the pencil. Yeah. Similar changes occur following the abortion, but a shorter period for the involution to complete. क्या होता है जब abortion का stage आता है, on that situation also ये टाइम आता है. क्या होता है, यहाँ पर तो बेबी डिलीवर्ड हुआ है, ठीक है. अब देर आर सो मेनी चेंजेस ऑकर इन दी पेल्विक ऑर्गन, क्योंकि बेबी वहाँ से आउट हुआ है यार. सो इतना बड़ा बेबी उस स्मॉल एरिया बर्थ कैनाल से आउट हुआ है, तो देर इज़ a lot of changes occur, right? अब same things happen in the abortion also. एबॉर्शन में भले बिग बेबी नहीं होता, बट ऑल चेंजेस जो हम लोग फिजियोलॉजिकल चेंजेस पढ़ते हैं, दैट ऑल हैपन ना. मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमको वो सारे चेंजेस दिखते हैं, तो ऑल चेंजेस विल रिवर्ट बैक इन द सिचुएशन ऑफ एबॉर्शन ऑल्सो. ठीक है. जब एबॉर्शन के टाइम पे होता है इन ए शॉर्टर पीरियड फॉर द इन्वॉल्यूशन, जब वो शॉर्टर पीरियड के लिए होता है तो दैट वी कॉल द इन्वॉल्यूशन. इन्वॉल्यूशन मीन्स मैंने बताया था all the organs, all the genital organs, pelvic organ, everything will be revert back as the pre-pregnant state, that we call the involution. Fourth trimester is the time. I am discussing about the fourth trimester. अभी तक मैंने आपको 3 trimesters बताए, and now I am discussing about the fourth trimester. आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फोर्थ ट्राइमेस्टर. तो आप लोग ऐसे शॉक्ड मत होना कि शशि में आपने तो हमें पढ़ाया ही नहीं है. ओके. एक और भी स्टेज होता है, जैसे आप लोग अभी तक 3 स्टेज पढ़े होंगे. फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, फोर्थ. आई होप कि आप लोग फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर भी पढ़े होंगे, क्योंकि फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर भी होता है. सेम एज फोर्थ ट्राइमेस्टर आई एम ऑल्सो डिस्कसिंग हियर. फोर्थ ट्राइमेस्टर इज द टाइम फ्रॉम द डिलीवरी until complete physiologic involution and psychological adjustment. ओके. अब क्या हुआ फोर्थ ट्राइमेस्टर? इस फोर्थ ट्राइमेस्टर में डिलीवरी के बाद से लेकर जब तक फिजिकल इन्वॉल्यूशन नहीं हो जाता. फिजिकल इन्वॉल्यूशन मीन्स फिजिकली बॉडीज जो है वो इन्वॉल्यूट नहीं हो जाता, पहले जैसे नहीं हो जाता. और साइकोलॉजिकली मदर जब तक एडजस्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि यार साइकोलॉजिकली अगर आप लोग सोच रहे हो साइकोलॉजिकली कैसे एडजस्टमेंट, एज ए हम नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है, अभी हम लोग
उस वुमेन का सिचुएशन नहीं जान सकते आफ्टर द डिलीवरी, जो कंडीशन होती है एक वुमेन की, बिकॉज सो मेनी चेंजेस हम लोग भी पढ़ेंगे क्या क्या चेंजेस एक वुमेन को होती है बॉडी में और कैसा वो फील करती। सोचो उस बर्थ कैनाल इज़ वेरी नैरोड एरिया, ओके, one baby, one big size 3 kg of baby get out from that very narrowed birth canal, how the condition of that woman will be, just think about that, okay। तो आप लोग को अभी लग रहा होगा एज ए नॉन प्रेग्नेंट वुमेन कि what psychological adjustment will be there. See, that woman came from the delivery pain, that woman came from the delivery of child, understand her mental situation कैसा होगा, okay। So it is, so we are calling about the psychological adjustment, mother needs साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट एज टू। क्या होता है जब मदर डिलीवरी करती है बेबी का, so many times what will happen, baby will cry at night, mother will not able to sleep at night, what will happen, baby will mother will feed the baby, breastfeed, so this is all not a part of our daily usual life na, तो इसलिए this is a very crucial period, very crucial time that mother suffers psychologically at all, okay। Now let's see the aims and objectives. What is our aims and objectives? Why we are assessing this postnatal period? Let's see. To screen out the high risk cases. Obviously, क्या आप बेबी डिलीवर्ड हो गया तो हाई रिस्क नहीं हो सकता है, हाई रिस्क केसेस नहीं आ सकते हैं, हाई रिस्क सिचुएशंस नहीं आ सकते, आएंगे। अब व्हाट हाई रिस्क सिचुएशंस विल कम्स इन पोस्टनेटल पीरियड, दैट आई विल टीच यू इन दिस यूनिट, ओके। टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड एट अर्लीस्ट एनी कॉम्प्लिकेशंस, अगर वुमेन प्रॉपर फॉलोअप चेकअप ले देती है ड्यूरिंग द पोस्टनेटल पीरियड, तो इस टाइम पे आप वुमेन को अर्ली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आप अर्ली उसको डिटेक्ट करके आप अर्ली ट्रीटमेंट दे सकते हो, ओके। नेक्स्ट इज टू इंश्योर कंटिन्यूड मेडिकल सर्विलेंस एंड प्रोफाइलेक्सिस। आप अगर प्रॉपर फॉलोअप्स ले रहे हैं, यू आर गोइंग फॉर द क्लिनिक properly, you are assessing, managing your postnatal period, then what will happen if there is any type of symptoms which leads to high risk, वो आप easily prophylactic कर सकते हैं हम, ताकि उसको easily मतलब treat out कर सकें, okay। टू एजुकेट द मदर अबाउट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ पिपेरियम, हम मदर को क्या होता है, सो मेनी वुमेन्स नॉट अवेयर अबाउट दी चेंजेस दैट हैपन इन द पोस्टनेटल पीरियड। जैसे एंटीनेटल पीरियड में मैंने आप लोग को बताया था ना, एंटीनेटल पीरियड में भी वुमेन, सो मेनी वुमेन्स डोंट नो व्हाट चेंजेस विल ऑकर इन दी ब्रेस्ट, व्हाट चेंजेस ऑकर विल इन द बॉडी, there are so many changes occur in the antenatal period also, okay। same happen in this postnatal period also। क्या होता है, there is a episiotomy हुआ है उस टाइम पे, what will be the condition of the mother, बहुत पेन होगा उसको, ईचिंग होगी, everything will be there in the genital organ, mother is continually feeding breast, तो ब्रेस्ट फीडिंग करने से भी देर इज ए चेंजेस, देर इज एनलार्जमेंट एंड बल्की ब्रेस्ट विल बी देयर, तो दिस इज लाइक मेजर चेंजेस इन द बॉडी, ओके। हर टमी, हर एब्डोमेन विल बी एनलार्ज, लाइक इट वुड बी जैसे कोई बलून जो होता है ना, दैट बल्की बलून, दैट हवा जब निकल जाती है तो इट बॉडी, इट मसल्स विल फील लाइक रिलैक्सड, ओके। तो वैसी मसल्स एटॉनिक हो जाएगा, तो इट नीड्स दिस टाइप ऑफ मसल नीड्स सो मच मसाज, राइट। तो इस टाइप के कंडीशंस वुमेन में फील होते हैं। Next is to educate the mother about the physiological changes of puerperium. So with these things we need to teach our patient, and we need to teach women that ये changes अगर आपको होगा तो don't be panic, this is a very normal things in the women। So this was all about the aims and objectives of a postnatal assessment and the management। Next we will see the physiological changes occurring in the postnatal period। Now the time is to understand what मैं आप लोग को बोल रही थी ना, there are lots of changes will occur in the postnatal period also। अब let's see what are the physiological changes occur in a woman। Here we are studying about the psychological also। क्या होता है, मैंने आप लोग को साइकोलॉजिकल
चेंजेस इन एंटीनेटल पीरियड नहीं बताया था. नाउ व्हाई आई एम फोकसिंग दिस साइकोलॉजिकल चेंजेस इन postnatal only. Now understand the things what I am going to teach. See, this situation is very crucial postnatal. जैसे हम बहुत lightly लेते हैं, अरे अब तो बेबी डिलीवर्ड हो गया, let it go, let it be. तो ऐसा नहीं होता है. Antenatal period is जितना antenatal period is very important as much as that postnatal is also play very important role. तो हमको उतना ही केयर पोस्टनेटल में भी करना चाहिए. लेट्स सी द फिजियोलॉजिकल चेंजेस. व्हाट फिजियोलॉजिकल चेंजेस ए मदर फील ड्यूरिंग द पोस्टनेटल पीरियड. Yeah, let's start first is uterine changes. See, uterine changes, a uterus is the only one, a uterus is the only one which shows major changes. जैसे just imagine एक यूट्रस है, ठीक है, उसके अंदर इतना बड़ा बेबी था, मान लो 3 kg 3.2 kg का बेबी था, वो अब आउट हो गया. व्हाट विद कंडीशन ऑफ दैट यूट्रस. जैसे एक बलून में हम हवा भर रहे थे, जब बलून फूट जाता है, व्हाट विद द कंडीशन ऑफ दैट बैलून. तो जो कंडीशन बैलून का होता है, दैट सेम कंडीशन विल हैपन इन दिस यूट्रस ऑल्सो. ओके, इमीडिएट फॉलोइंग द डिलीवरी द यूट्रस बिकम फर्म एंड रिट्रैक्टेड, ऑल्टरनेट हार्डनिंग एंड सॉफ्टनिंग. क्या होता है, जैसे ही बेबी डिलीवर्ड होता है, यूट्रस जो होता है ऑल्टरनेट हार्डनिंग एंड सॉफ्टनिंग होती है. कभी हार्ड फील होता है, कभी सॉफ्ट फील होता है. ओके, द यूट्रस मेजर्स अबाउट 20 into 12 into 7.5. दिस इज एंड द वेट अबाउट दी 1000 kg. ये होता है एक वुमेन के यूट्रस की कंडीशन. ओके, एट द एंड ऑफ द 6 weeks इट्स मेजरमेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट वुमेन. मैंने आप लोग को नॉन प्रेगनेंसी का नॉर्मल जब एंटीनेटल पढ़ाई थी, उस टाइम पे भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एक नॉर्मल वुमेन का यूट्रस का लेंथ, विड्थ, दैट वी कैन ऑल्सो से द ब्रेथ, लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस, वो एक जो नॉर्मल वुमेन का होता है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन का, वो आफ्टर 6 weeks आपको देखने को मिलता है. ओके, एंड वेट अराउंड द 60 ग्राम. अबाउट द वेट इज 60 ग्राम. अभी वेट कितना है, 1000 ग्राम. 1000 ग्राम ऑफ वेट इज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन. एक प्रेग्नेंट वुमेन का वेट, यूट्रस का वेट होता है, वो होता है 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम तक चला जाता है. बट एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन का जो वेट है, दैट इज अराउंड दी 60 ग्राम. ओके, next we'll see